exercise key case 1 and case 2. So today starting with a new topic. Hello, my name is Kashish Palani and welcome back to Kashish Teachings. So now let's see what are the properties. So property number 1, closure property. The sum of 2 is also a rational number. When you have summed, आपने कुछ ऐड किया like 5/7 plus 6/9. जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो इसका आंसर जो आएगा इट विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर. ओके, तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि रेशनल जो आपने दो सम्स को ऐड किया, दो रेशनल नंबर को जो ऐड किया, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेशनल नंबर का ही फॉर्म होगा वो. ओके, if a/b and c/d are two rational number, then a/b plus c/d is also a rational number. यानी आपने ये दोनों क्या है, ये दोनों है रेशनल नंबर. ओके, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर. So the answer will be rational number. So this is still in this topic, in the property first. Now coming toward the next. So here is the example. So now let's see the example. Now we have to solve -5/8 and 11/12. Because here sign is not given, minus sign, so the step 1 will be another step. Okay, so what will be the step 1? So the step 1 will be to make the LCM same. So the LCM of 8 and 12. ठीक है, अब now let's take the LCM of 8 and 12. Now what will happen? Let's take over here. So 8 and 12, so 2 4s and 6s, 2 2s and 3s, 2 1s and 3 will be remain like this only, and 3 1 and 1. Okay, so now 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 8 3s are 24. So here the LCM is 24. Now because we have to make their denominator in 24, so what we will do, we will multiply by that number, like -5/8 multiply by whom to get denominator 24. Okay, so the 8 3s are 3/3, so 15/24. Okay, so like this we are gonna do in the same 11/12. So as the 11/12 multiply by whom, so 2/2 to get 24. So 11 2s are 22 and over here 24. Okay, so I am wrapping this one matter. So step 1 was to take out the LCM. What was the step number 1? Step number 1 was to take out the LCM. Okay, now I am running the step 1. Now step 2 will be to make the to set the denominator. Okay, now how to set the denominator? -5/8 multiply by, now we have done this. So now LCM is same, so now 24, it is the LCM is the same, so denominator same, so what we will do, -15 plus 22, and this one in the bracket because it's -15. Now -15 and 22, so they are going to be minus because plus minus minus. So what will be the answer? It is going to be 7. Why 7? Because plus number quantity is bigger than the -15. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -15 जो है 22 से छोटा है, तो इस वजह से 22 क्या है, प्लस में, तो 7 क्या आएगा, पॉजिटिव. अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 22 होता, यहाँ पे 15 होता, तो यहाँ पे माइनस लग जाता. ओके, नाउ अब क्या होगा, नीचे 24 because the denominator are same. So like this we do in the closure property. So there are total step 2. There are total 2 steps. First step is to take out the LCM to make the denominator same. Okay, so and the second step is that to solve. Here we are doing addition, so we are gonna do addition, and after doing addition you have to solve that question. Okay, because minus and plus, if here was plus, so we are gonna plus 15 and 22, but because here it is minus, so they are going to be minus. Why? Because plus minus minus.
Now coming toward the second property. Okay, now here is the property number 2. So property number 2 is combinative law. Now what is the combinative law? Let's see the definition. If A upon B and C upon D are any two rational number, then A upon B plus C upon D is equal to C upon D plus A upon D. जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल से करती हूँ. आपने एक नंबर लिया 5 plus 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 और 7 का कितना होता है? 7 का 8, 9, 10, 11, 12. ओके, सो 12. अगर आप 7 plus 5 करोगे तो क्या आएगा आंसर? तो भी 12 आएगा. तो ये कहना चाहता है कि आप अगर जो पोजीशन है नंबर्स की वो चाहे चेंज कर दो, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, चाहे चेंज कर दो तो क्या होगा? फिर भी आंसर जो है सेम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? A अपॉन B, कोई जैसा हम मान लेते हैं, चलो A अपॉन B मान लेते हैं. ठीक है, A अपॉन B प्लस C अपॉन D इज इक्वल्स टू C अपॉन D प्लस A अपॉन D इज इक्वल्स टू सेम. यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी दोनों का जो सम होगा वो सेम होगा. ऐसे नहीं कि आपने अगर इधर चेंज कर दिया तो इधर है ना आंसर 10 आ जाएगा ना कुछ और आ जाएगा आंसर. नहीं, यहाँ पर हमारा वही आंसर आएगा जो पहले आया था. लेकिन नंबर के अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप नंबर चेंज करते हो उससे आपको फर्क पड़ता है. नाउ लेट्स कम टू वर्क द एग्जांपल. एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर. ओके, नाउ हियर इज द एग्जांपल नंबर 2. अब यहाँ पे आप देखो 5 upon 9 and minus 7 upon 15. ठीक है, अभी हम पहले क्या निकालेंगे? स्टेप 1 क्या है हमारा? टेक आउट द एलसीएम फर्स्ट. सो द एलसीएम of 9 and 15 is equals to. अब 9 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये मैं रफ फॉर्म में कर दी दिस वन साइड 9 and 15. ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू 3 people. 3 3s are, this is 5s are. Okay, 3 1s are and 5 will be 2 and 5s are. Okay, so it is gonna be 1. So 3 3s are 9 and 9 5s are 45. So the answer will be 45. Now we have to convert that into 5 upon 9 multiply by whom to get the denominator 5. 45. So we are going to multiply by 5 upon 5 because 9 5s are 45. So 5 5s are 25 and 9 5s are 45. Now coming to the second one. Now minus 7 upon 15. Minus 7 upon 15 is there. So I'm going to multiply by whom to get 45. Over here, what we have to do is we have to multiply by whom that they have to, that will get the number. Okay. Okay, so like that we have to do. Now minus 7 multiply by whom? 15 multiply by whom to get 45. So over here we are going to multiply by 3. Okay. Now multiply by 3. So 7 3s are minus 21. Why? Because there is the minus sign upon 45. Now we have to solve that. जैसे हम solve करते हैं रेशनल नंबर में, वैसे हमें solve करना है. Okay, so now अब क्या होगा इसमें?
next thing is the property number 3. So we have done the property number 2. Now starting today with the property number 3. Now let's see what is the property number 3. Associative property. Now the third one property is associative property. Okay. If A upon B, C upon D and A upon F are 3 rational number, then A upon B plus C upon D plus in the bracket E upon F plus E upon F is equals to E upon F plus C upon D plus A upon B. So over here associative property says that कि अगर आपने कुछ नंबर लिए जैसे 3/7, 5/6 and 9/3. ओके, हमने 3 नंबर्स लिए. पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट मतलब कि इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे. ओके, एंड यहाँ पर जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप इसको ब्रैकेट में किसी भी एक नंबर को रखते हैं जैसे 3/7 एंड 5/6, ठीक है, जब इसका आंसर आया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9/3 से. ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया और उसको सॉल्व कर दिया. उसके बाद हम किससे प्लस करेंगे? 9/3 से. ठीक है, और आंसर जो आएगा, सपोज करिए कि आंसर आया 9/7. ठीक है, 9/7 आया आंसर, है ना. अब अगर हम यहाँ पर 9 को प्लेस अंदर कर दे और इसको बाहर कर दे 7/8, इसको बाहर कर दे. मैंने नंबर चेंज कर दिया, लेकिन अगर इसको बाहर कर दे तो क्या होगा हमारा कि आंसर जो है वो ही आएगा 9/7. ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि चाहे आप चाहे आप है ना उसके चेंज कर दे ब्रैकेट के अंदर के न्यूमेरिकल्स, अंदर के नंबर्स जो है चेंज कर दे, फिर भी आंसर जो है सेम ही आएगा. आई विल मेक यू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. सो लेट्स कंटिन्यू विद एन एग्जाम्पल. So here is the example. So example number 1 in the property number 3. Now here we take 2 numbers, right? We have to in the 2 numbers we have to take out the LCM and then we have to solve it, and after solving it the answer will come. Okay, but over here what we have to do, there are the 3 rational number, so we have to place the bracket between them. So now let's take the now you have to do addition. So what I'm gonna do, 2/5 in bracket plus -5/12 in bracket plus 7/50. Okay, so over here what we have done, we have take these 2 digits in inside the bracket to solve them first. Okay, so now here plus minus will be minus, so here the bracket will be there. So 2/5 plus -5/12. Okay, now what we have to do is we have to take out the LCM. Why? Because their denominator are not same. So now let's take out the LCM. Over here I am taking out the LCM. Now 5 and 12. 5 and 12. So 5 ones are and 12 will be remain, and 12, 1 and 1. I am not solving them like continuing with the smaller number. I am just doing in rough. You can do it right rough in. So 5 and 12. So now LCM will be multiplier of 5 and 12, which is 60. Okay, now we have to set them in 60. The denominator should be set into 60. So 2/5 multiply by what to get upon 60. So we are going to multiply by 12. So 12 2s are 24 and 5 multiplied by 12 is 60. Okay, so now just a second. Now it's second one chance. हमें डिनोमिनेटर जो है किस में सेट करना है? हमें सेट करना है उसको जो हमारा एलसीएम आया है. ठीक है, अब -5/12 की बारी है, तो -5/12 multiply by what to get
अपॉन 60, तो 12 5 होता है 60, तो 5/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -25। ठीक है, हमने दोनों के जो एलसीएम है सेम कर दिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, उसमें 25 और you can write 24 because it's addition, plus -25, ओके, अपॉन 60। सो हमने डिनोमिनेटर जो है सेम कर दिए। अब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कौन सी स्टेप आ जाएगी, ये वाली स्टेप, जब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब 60 हो गया अपॉन, अब हम क्या करेंगे, 24 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आ गया -1/60। माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू, जिस नंबर की बड़ी वैल्यू है उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1। ठीक है, हमने यहाँ तक तो कर लिया ना। अब 7/15 प्लस -/60 करेंगे, ओके। तो अब किसकी बारी आएगी, जो ब्रैकेट के बाहर था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अब 7/50, अब -1/60 प्लस 7/50, ठीक है, -1/60 प्लस 7/50, क्योंकि अब इन दोनों के इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इस वाले का जो है, जो एलसीएम है, इसका डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी 60 है। ठीक है, अब हम इसको जो है चेंज करेंगे 60 में। अब हम 60 और 15 का एलसीएम नहीं निकालेंगे, अब 7/15 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिससे हमारा आए आंसर डिनोमिनेटर में 60। ठीक है, तो 7/15 मल्टीप्लाई बाय वॉट टू गेट डिनोमिनेटर 60। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 60 आए, तो 15 4 जो होता है हमारा आएगा। ठीक है, 7 4 28, तो यहाँ पे हमारा -1/60 प्लस 28/60। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, हम इसको एक साथ ही लिख देंगे, ओके। ये हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पर आ गया 60 और यहाँ पे आ गया प्लस, तो क्योंकि -1 है तो -1 हम जो है उसको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। तो -1 प्लस 28/60, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है। तो 28, तो हमारा आंसर क्या आएगा 27/60, तो हमारा 27/60 आ गया। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट ये वाली जो क्वेश्चन है सॉल्व कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7/15 को अंदर रखेंगे और 2/5 को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम दूसरी बार करेंगे तो सेम आंसर आएगा विच इज़ 27/60। आप ये ट्राई करके भी देख सकते हो। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है कि चाहे वो ब्रैकेट, जैसे ये दोनों क्या थे ब्रैकेट में थे और ये बाहर था, तो उसका आंसर आया 27/60। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा और ये वाला बाहर आएगा तो भी आंसर 27/60 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर नंबर में कोई चेंज नहीं है तो आंसर में भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द प्रॉपर्टी नंबर 4. Okay, here is the example number 4. Property number 4. Existence of additive identity. Now over here now existence of additive identity. Let's see the definition. The rational number 0 is the additive identity for rationals. Additive identity means कि जो नंबर जिससे आप प्लस करो वही सेम आपको रिटर्न दे, उसी को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो द रेशनल नंबर 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल्स। ओके, तो रेशनल्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। कैसे, जैसे a/b प्लस 0 करे या फिर 0 प्लस a/b करे तो आंसर क्या आएगा a/b। क्यों ये a/b आएगा, क्योंकि 0 की जो होती है कोई वैल्यू नहीं होती है,
सपोज़ करो इधर एटलीस्ट 1/1 होता तो कुछ आ भी सकता था आंसर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 है और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस वजह से इसको एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। ओके, तो जो नंबर जैसे 0 हो गया, 0 ही होता है एडिटिव आइडेंटिटी, उसी नंबर को वापस रिटर्न करते प्लस करने से, जैसे a/b + 0 या फिर 0 + a/b करें तो a/b ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इफ़ वी सी द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया 13/29। अब इसका क्या होगा, 13 प्लस अगर हम 0 करें या फिर = 0, 13/29, आंसर क्या आएगा, 13/29 ही आएगा। ओके, तो 13/29 आपका जो है ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें अगर हम +0 करें या फिर 0 को पहले रखें और उसको बाद में रखें तो भी आंसर क्या होगा, सेम आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने नंबर ले लिया 15/19, ठीक है। 15/19 हमारा एग्जाम्पल है। इसको अगर हम प्लस करें 0 से या फिर 0 को जो है आगे रखें, जहाँ पर ये वाला था नंबर 15/9 + 15/19, तो आंसर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, विच इज़ 15/19। तो ऐसा 15 अजीब सा बन गया है, ठीक है। तो 15/19 + 0 करें या फिर 0 को पहले रखें तो आंसर एक आएगा, विच इज़ 15/19। तो इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Okay, so here is the property number 5. Now let's see what is the property number 5. Existence of additive inverse. Additive inverse means inverse का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। Okay, and additive means plus, ठीक है। अभी definition देखते हैं। For every rational number a/b, then exist another rational number -a/b। जैसे यहाँ पे a/b था, उसका -a/b हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि फॉर एवरी रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर के लिए a/b जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसके इन्वर्स में चला जाता है -a/b के, ठीक है। a/b + -a/b। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे a/b था तो इसका क्या हो जाएगा, -a/b होगा, और एडिटिव मीन्स प्लस, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a/b ले लिया। अब a/b का क्या करेंगे हम, उसका इन्वर्स, तो इन्वर्स प्लस a/b का इन्वर्स क्या होगा, -a/b, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। ओके, +a/b + -a/b, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। जैसे आप अगर 7 - 7 करते तो 0 आता है आंसर, राइट। ऐसे अगर हम इन दोनों को भी माइनस करें, माइनस का साइन नहीं है इधर, प्लस का है, लेकिन माइनस कैसे हो गया, क्योंकि a/b जो +a/b का इन्वर्स था -a/b, उससे हमने प्लस कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर आया 0। Now let's come toward the example. So here is the example. Now example में हमारे पास है डिजिट, रेशनल नंबर जो है हमारे पास वो है 3/11। अब क्या होगा, 3/11 + -3/11। क्यों हमने -3/11 किया, क्योंकि इट इज़ इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3/11 + -3/11 इन ब्रैकेट = 0। चाहे आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका एडिटिव इन्वर्स है 3/11 का, और हम यहाँ पे एडिटिव है तो प्लस, और इन्वर्स मीन्स इसका +3/11 का उल्टा यानी -3/11। तो इसी तरीके से होगा एडिटिव इन्वर्स।
सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सब्ट्रैक्शन के भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सेम ही होता है लेकिन उसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Till then, take care and have a nice day. Meet you again in the next video.